السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ریسیپی ورلڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا، جیسی کلپنگز میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم نے مدینہ کی تیاری کس طرح کی تھی اور ہم مدینہ کے سفر پہ کیسے نکلے تھے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں زیارتیں آپ کو دکھاؤں گی، تو الحمدللہ میری ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ساری زیارتیں دکھاؤں گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ مدینہ طیبہ سارے زیارت گاہ ہے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے، یہاں ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیرا ہے۔ یہ وہی گلیاں بازار ہیں جہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیا جایا کرتے تھے۔ ہمیں سب کچھ فری میں ملا ہے نا، ہم نے محنت نہیں کی، مشقت نہیں کی، کوشش نہیں کی۔ صحابہ کرام نے بڑی محنت، بڑی مشقتیں کی ہیں۔ آج تو جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں اور نوٹوں کی بارش کی جاتی ہے۔ اس وقت کلمہ پڑھنا بڑا مشکل تھا۔ جو نام لیتا تھا لا الہ الا اللہ کا، اس کا جینا دنیا مشکل کر دیتی تھی۔ کفار پوری طاقت میں تھا نا۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کے نہیں رہنے والے تھے، آپ فارس سے آئے تھے اور آپ کو حق کی تڑپ تھی کہ کوئی حق کا راستہ مل جائے۔ تو آپ بچپن سے ہی نا جن استادوں کے پاس پڑھتے، پہلے لوگ مرتے تھے تو اپنے بچوں کو، اولاد کو جمع کر کے وصیت کر کے بتاتے تھے کہ لگتا ہے بیٹا کوئی آخری وقت آ گیا ہے، اب لگتا ہے کہ یہ کام کر لینا، وصیت کر کے لوگ مرتے تھے۔ اس طرح جب ان کے استادوں کا کوئی آخری وقت آتا نا تو وہ ان کو دوسرے استاد کے پاس بھیج دیتا۔ یک کے بعد دیگرے 5 استادوں کے پاس وہ پڑھتے تھے۔ جب آخری کے پاس تھے تو انہوں نے کہا بیٹا اب کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جس کے پاس تجھے بھیجو، میرے کہنا ایسا ہے کہ تم حجاز مقدس چلے جاؤ۔ اس وقت تجارت جو تھی وہ قافلوں سے ہوتی تھی نا، تو انہوں نے کہا یہ قافلہ جو جا رہا ہے اس کے ساتھ چلے جاؤ، یہ حجاز مقدس جائے۔ تو وہاں آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ حق ہے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ان کی کوئی نشانی بتاؤ، میں کسی اور کے پیچھے جا کے نہ لگ جائے۔ انہوں نے کہا اچھا، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسرا وہ ہدیہ قبول کریں گے، تیسرا دونوں شانوں کے درمیان ان کو مور نبوت ہوگی۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قافلے سے چلے، اس قافلے میں جب مال تجارت چینج کی، اگلے قافلے کو دیا تو ان کو غلام بنا کے بھیج دیا کہ یہ غلام ہے۔ پھر آپ غلام بکتے بکاتے نا یہاں اس دھرتی میں آ گئے، مدینہ طیبہ میں حجاز مقدس میں پہنچ گئے۔ تو جب جانے لگے تو انہوں نے کہا بھی تم تو غلام ہو، تم تو نہیں جا سکتے۔ پھر آپ نے غلامی کی زندگی بسر کی۔ مختصر کے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو یہ بڑی تیزی سے خبر پھیلی تھی کہ ایک نبی ہوئے ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ میں آ رہے ہیں۔ باغ نہیں، ان کے نام سے منسوب ہے، اس کے ان کے وہ یہودی کے پاس غلام تھے نا۔ تو جب ان کو پتا چلا تو ایک دن وہ کھجوریں لے کے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دیکھ کے مسکرائے، فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ آپ بھی بڑے خوش ہوئے تھے، ایک تو شرط پوری ہو گئی ہے۔ کوئی دنوں بعد پھر آئے، کہتے کہ یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ سرکار دیکھ کے مسکرائے، فرمایا ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ خود بھی کھایا، صحابہ کو کھلایا۔ وہ تیسری جو شرط تھی، آپ چاہتے تھے کہ وہ بھی دیکھ لوں تو پھر پورے اسلام قبول کروں، کلمہ پڑھوں۔ اس کے بارے دو روایتیں ہیں کہ آپ چادر مبارک لی ہوئی تھی تو وہ آواز چلی تو اڑ گئی تو آپ نے دیکھ لیا۔ ایک ہے کہ سرکار نے قمیض مبارک اٹھائے، فرمایا مسلمان یہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ان کو دیکھ کے پوتا دیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اس وقت کے بعد پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں یہودی کے پاس غلام ہوں، زاد ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ جب پوچھو وہ کیا مانگتا ہے، وہ ہماری قیمت کیا چاہتا ہے۔ جب اسے پوچھا تو اس نے کہا یہ میری زمین ہے، اس میں 200 کھجوروں کے درخت لگاؤ، جب وہ جوان ہوں گے پھل لگے گا تو پھر آپ گزار کرو۔ تو یہ بڑی لمبی شرط تھی نا، کھجور اتنی جلدی جوان نہیں ہوتی کی، پھر پھل ہی نہیں لگتا اتنی جلدی۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی ہے نا، اب تو حالات بدل گئے، یہ سارا وہی باغ ہے۔
जब सरकार की बारगाह में गए तो फिर बोले नहीं, चुप करके बैठे रहे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सलमान बताया नहीं वो क्या कहता है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे आजाद ही नहीं करना चाहता जी। सरकार ने फरमाया हुआ क्या? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये शर्त लगा दी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ जाके जमीन तैयार करो। जब जमीन तैयार होगी तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए। सरकार ने खुद अपने हाथों से ये कुटनी लगाई। इसके बारे दो है, एक है कि एक रात में तैयार हो गया, एक है कि 1 साल के बाद वो बाग तैयार हो गया, फल लग गया। तो फिर उन्होंने कहा ये सरकार का मौजज़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी शर्त है, मुझे आज़ाद करो। फिर उसने आपको आज़ाद कर दिया। ये उल्टे हाथ में ये जाली लगी हुई है ना जी, ये इसके ऊपर लिखा भी है मंतक़ा असार, ठीक है। इसके आगे नहीं आप जा सकते। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर बताया जाता है कि यहाँ उनका जब करबला से वापस आए तो फिर यहाँ उनका मस्कन था। ये कुआं इसके अंदर ये बंद कर दिया गया है, ये बंद कर दिया है। ये जगह है वो, ठीक है जी। और ये सामने वाला है, ये जो वो बाग है, ये जो बाग खजूर का बाग है, ये खजूर का बाग। ये सारा जितनी बिल्डिंग भी है ना, ये वही बाग है। ये उसी जगह में भी ये बिल्डिंग जो है, ये मदरसा बना हुआ है, स्कूल है आजकल ना, हुसैन बिन अली के नाम से। कंटिन्यू करना। अच्छा ये आगे बंद कर दिया गया, ठीक है। ये ऊपर बोर्ड लगा हुआ, ये मदरसा बना दिया गया हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ से भी गुजर जाते हैं। ये वो जगह बताई जाती है। अल्लाहु आलम व रसूलुहु। ये पूरा बाग है, दोनों तरफ ये हमने अर्ज किया था कि आपको मजा आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये नहीं होगा कि हम वैसे नहीं करेंगे। ये दर्रो दीवार जो आसार हैं, ये बताते हैं कि ये बहुत पुराने हैं जी। आगे एक कुआं है जिसके बारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वसाल के बाद मुझे इस कुएं के पानी से गुसल दें। आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते थे तो यहाँ से वजू करके आपको बजाया करते थे। इस जगह से इस जिस कुएं पे जा रहे हैं जी जी जी। तो बताया जाता है कि इसमें सरकार ने अपना लोग दहन भी डाला था। अच्छा वो एक बीरे रुखा भी है ना? जी जी वही है, जगह इस तरह कहते हैं। उस मस्जिद का नाम है बनी हादसा। इस तरह इस सारे महल्ले को इस तरह कहते हैं कि यहाँ सरकार रुका करते थे, वहाँ अब मस्जिद बनी हुई है। ये जो बात बता रहा हूँ ना, ये इस बोर्ड पे लिखी हुई है अरबी में ना, ये मस्जिद है। और ये जब सरकार यहाँ जाया करते थे तो यहाँ जाला सफी मौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही न रजू आमिन गज़वे उहुद, जब गज़वे उहुद जाया करते थे, इरादा करते तो यहाँ बैठते थे। ये वो जगह है। और आगे वो मस्जिद है जहाँ से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को तैयार किया था उहुद की जंग के लिए। वो जंगी लिबास जो ज़रा है वो पहना था। और इस जगह पे सरकार ने जो असर मगरिब इशा और फजर की नमाज भी अदा फरमाई थी। ये उसी तरह छोटी सी मस्जिद है। ये भी ये सीधे हाथ में देखिए, ये छोटी सी मस्जिद है। ये मस्जिद शेखैन है। वो बोर्ड जो लगा है ना, उस पे ये सारी बात लिखी है अरबी में भी और इंग्लिश में भी। साथ मोहब्बत की है वो जन्नत में जाएगा। वो सतून हनाना था, सुना होगा आपने जी? सतून हनाना रियाजुल जन्ना में एक सतून था खजूर का, सूखा हुआ तना था, ठीक है, खुशक तना था, जिसके साथ आका अलैहिस्सलाम
टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाते थे। ठीक है जी। और जब हालात कुछ बेहतर हुए तो फिर सहाबा ने वो मिंबर बना के ना लकड़ी का वो पेश किया कि सरकार आप इसके ऊपर बैठ के आप खुतबा इरशाद फरमाएं। तो जब वो खुतबा मिंबर पेश किया गया तो सरकार फिर उस पर बैठे, तो वो सतून को छोड़ दिया। सहाबा कहते हैं हमने अपने कानों से सुना सतून ने हनाना ऐसे रोया जैसे बच्चे रोते हैं, बिल बुलाते हैं ऊंची आवाज, और हमने कानों से सुना के सतून हनाना रो रहा। फिर आका अलैहिस्सलाम मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए, उस पर अपना दस्तक रखा, फिर वो चुप हो। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसको काट के ना मिंबर के नीचे दफन कर दो, ये हमारी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सका, वो भी जन्नत में है। ये रियाजुल जन्नह जो है ना, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा बैना मिन बैती रोज़तुम मिन रियासिल जन्नह, ये मेरे घर से लेके मेरे मिंबर की जगह जो है ये जन्नत की क्यारी है, ये जन्नत है। जहाँ सरकार का रोजा है वो जन्नत है। ये रियाजुल जन्नह को जन्नत की क्यारी कहा गया है, हदीस पाक है, वहाँ ये हदीस लिखी है। तो आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से वो मिंबर बनाया गया था। सबसे पहला मिंबर जो बनाया गया ना वो इसी तरफ से एक जंगलात है, आजकल उसका नाम खलील है, वहां से लकड़ी लेके वो मिंबर बनाया गया। पानी नहीं है इसमें, बारिशी पानी या इस्तेमाल शुदा पानी यहाँ जमा करते थे, फिर आगे खजूरों के बागों को लगाते थे। मशहूर कहते हैं वादी जिन, इसलिए वादी जिन इसको कहते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ न्यूट्रल पे करते हैं तो खुद मदीने को चलती जाती है। ये बात, इसका क्या वाक़या है? ये जो सामने ये लगा है दरवाजा है ये वाला, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अब हम उसमें दाखिल हो गए। इस सारे इलाके को वादी जिन कहते हैं। यहाँ तक गाड़ी खुद न्यूट्रल पे कर दो तो यहाँ तक चलती आती है, वापसी पे जाते हुए नहीं, वापसी पे। ये दाएं बाएं पहाड़ आम पहाड़ों जैसे है ना, इतने कोई मुख्तलिफ नहीं। वो सामने वाले हैं वो थोड़े नुकीले पहाड़ है, मुख्तलिफ है। चालीस की स्पीड पे आ गई, हालांकि ये ब्रेकर है, यहाँ स्पीड कम हो जाती है। ऊपर कर लेते, ये मैंने वो ऊपर कर लिया। इसको वादी जिन कहते हैं, इसलिए यहाँ खुद चलती है। अल्लाह पर निशान है। ये 60 की स्पीड पे जा रही होती है गाड़ी। इधर की बना ले, पीछे की। सही है बना ले। ये तो अभी जाएगी 100 के ऊपर। 100 से भी ऊपर जाएगी गाड़ी। 100 हाँ 100 से 100 प्लस सही। कहाँ तक?
ऐसा ये वो बाग है जो बता रहा था ना, वादी खलील आजकल इसको कहते हैं। जी जी जहाँ से वो यहाँ मिलकर से बनाया था। मिंबर बनाया गया था, इस इलाके की लकड़ी से लेके वो सरकार के लिए मिंबर तैयार किया गया। ये वो जगह है। इसका नाम वीरे गर्स, पहले ये बंद था। बीरे गर्स, बीरे गर्स। वीरे गर्स था, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन अब उसको ये मेंटेन कर रहे हैं। देखा, इसकी तमीर कर रहे हैं। पहले ये बिल्कुल बंद था, जैसे जितनी ये चादर लगी हुई है ना, इतनी इतनी दीवार थी। शायद पहले आपने देखा कि नहीं, अभी आए इस तरफ नहीं आए। नहीं, इधर पहले नहीं आना हुआ। तो इस तरह दीवार थी, उसके ऊपर छत पड़ा हुआ था बस। ये सामने देखे अब माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत करके वो उसको बना रहे हैं। लगता है कि करीब ये खोल देंगे इसको। इंशाअल्लाह ताला। ये वो कुआं है, और इस जगह जो साथ है इसको खाके शिफा का मैदान भी कहते हैं। अच्छा। ये सामने जो दीवारें हैं ये पुरानी आबादी है, कच्ची दीवारें। वो बीरे रोहा जो है, बीरे शिफा, वो बद्र को जाते हुए से गुजरा है ना। ये खजूर का जब आगे। जी जी। तो जब आका अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्का पाक से मदीना की तरफ रवाना हुए तो ये बड़ी तेजी से खबर फैली थी, क्योंकि मक्का वाले तो आपके जान पे दर पे थे ना, ये छोड़ेंगे नहीं। फिर उन्हें बहुत बड़ा इनाम रख दिया कि 100 ऊँट देंगे जी, जो पकड़ के लाए। तो ये बड़ी तेजी से खबर फैली थी कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं। तो अहले मदीना हर रोज बाहर निकल के था आपका इंतजार करते थे। शाम को घरों को वापस चले जाते। तो जब तशरीफ लाए तो आका अलैहिस्सलाम पहले वादी कुबा में रुके। इस मस्जिद कुबा की सरकार ने खुद बुनियाद रखी, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप मदीना में तशरीफ। आगे की जगह आ रही है जहाँ पर अहले मदीना ने आपका इस्तकबाल किया। बनी नजार कबीला बहुत बड़ा मदीना का कबीला था, सरदार। उनके बच्चे ने वो दफ के साथ जो तराना बोला था ना, नात पड़ी थी, जी। ताला अल बद्र वाले वाजा का शुक्र वाले मिन सनियातिल वदाई लिल्लाह, वो आगे आ रही है। वो कैसा समा होगा कि लोग बड़ी बेताबी से सरकार का इंतजार करें, और हर बंदे की ख्वाहिश थी सरकार हमारे घर तशरीफ लाए। ये जो राइट में बिल्डिंग है ना, जी। यहाँ पर स्कूल है, मदरसा है कस्वा, कौन सा, ये वाला? मदारस कस्वा लाहलिया, ये वाला। ऑरेंज बोर्ड वाला। जी जी, ये वो जगह है जहाँ पर इस्तकबाल हुआ और आपके साथ वो नात पड़ी गई। ये जो बंद कर दिए। जियारतें बंद कर दी इन्होंने। ये जो सामने है ये मस्जिद जुमा है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है अरबी में। सरकार ने पहला जुमा यहाँ पर अदा फरमाया था। ये वो जगह, ये सामने जो मीनार नजर आ रहे हैं ये मस्जिद कुबा शरीफ है, ठीक है जी। अल्लाह ताला इसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवे पे रखी गई। जिन्होंने रखी है वो तकवा वाले हैं, परहेज़गार हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह पाकों से मोहब्बत करता है। इस मस्जिद की बुनियाद आका अलैहिस्सलाम ने खुद रखी है। सहाबा कराम ने एक दिन सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले मक्का बड़े खुशकिस्मत हैं। फरमाया क्यों? अर्ज़ की या रसूलल्लाह रोजाना वो तवाफ़े काबा करते हैं, उम्रे करते हैं, हम तो नेकी में पीछे रह जाएंगे। फिर करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा जो कुबा घर से वुजू करके आए, कुबा में आके 2 रकत नफल पढ़े, अल्लाह उसको मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा, मकबूल उम्रे का।
من تتقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر فی بیتی آتی مسجد قباء فی صلی رکعتین اجر کامل عمرہ، اس کو مقبول عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ قبلوں والی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے شروع دور میں مسلمان مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہودی بھی یہ تانا دینا شروع ہو گئے، لیکن آقا علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ وہ ہو جو دادا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جو مکہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ایک دن آقا علیہ السلام یہاں تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، 2 رکعتیں پڑھ لی تھی۔ یہاں سے بالکل اس طرف بیت اللہ ہے، اس طرف، اور اس طرف مسجد اقصی ہے، یعنی کہ بالکل اس طرح اپوزٹ سائڈ پر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں، قبلۃ ترضاها، جدھر آپ کی رضا ہے، جدھر آپ چاہتے ہیں ادھر روک پھرو، اس کو قبلہ بنا دیں۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، آقا علیہ السلام نے اپنے چہرے انور کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیا، اور ہمیشہ کے لیے قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو مقرر فرما دیا۔ یہ واقعہ اس مسجد میں ہوا تھا، اس لیے اس کو قبلتین یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں۔ سرکار نے 2 رکعتیں پھر ادھر پڑھی، باقی 2 رکعتیں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی۔ یہ مسجد ہے، کرونا سے پہلے یہ کھلی تھی، اب صرف نماز کے لیے کھلتی ہے، اس کے بعد پھر بند کر دیتی۔ لیکن کافی ساری اور بھی زیارتیں ابھی جو ہیں وہ بند کر دی ہیں جی، وہ تو پکی ہی بند کر دی ہیں۔ نہیں اب آہستہ آہستہ کھول دیں گے لگتا ہے۔ اچھا جی، وہ میں بتا رہا تھا نا کہ یہ سامنے دروازہ ہے اس کا نا، یہاں لوگ باہر ہی کھڑے ہیں، ایک دروازہ اس طرف ہے وہ بند ہے۔ یہ مسجد قبلتین ہے۔ میں جیسے کہہ رہا تھا نا کہ وہ بدر شریف میں جانے کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی نا، روکتے تھے ہمیں، کیوں آئے ہو، کامہ لے لینا، یہ کرنا، لیکن اب وہ سختی نہیں، اب کوئی روکتا جا سکتے ہو آپ، بلکہ جس طرح جنت البقیع کی دیوار ہے نا جالی لگی ہے، اس طرح وہ پہلے بالکل اس طرح بند دیوار تھی، اب اس تو دیوار کو بند توڑ کے نا اس پر جالی لگا دی ہے کہ باہر سے قبرستان نظر آئے، احد بدر شریف کا جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آ کے وہ وہاں جانے کی اب اجازت ہے، جا سکتے ہیں۔ کوئی اس پر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ ہلنے لگا نا، جنبش کرنے لگا پہاڑ۔ یہ تو خوشی سے جھوم رہا تھا نا، اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے کہ میری کتنی بڑی قسمت ہے، خوش نصیبی ہے کہ سرکار میرے اوپر تشریف لائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احد تجھے کیا ہے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، یہ آپ کی حدیث پاک ہے۔ تو پھر یہ رک گیا تھا۔ جا رہے جہاں یہ واقعہ ہوا کہ ایک دن ایک صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندھا، اپنا قمیض اٹھا کے دکھایا تو وہاں پتھر بندھا تھا۔ تو جب ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک اٹھایا تو وہاں 2 پتھر بندھے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ گھر گئے، جا کے بیوی سے پوچھا گھر کو کھانے کو ہے؟ کہتی ہیں تھوڑا سا آٹا ہے، 5-6 بندے کا کھانا بن جائے گا، کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ معاملہ دیکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کریں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، یہ بکری ذبح کر کے سالن بنائیں گے اور سرکار کی دعوت کرتے ہیں، جاؤ تم دعوت پیش کرو۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔
इतना खाना है, 5-6 बंदे का खाना है, आप तशरीफ ले आए, 2-4 साहबा साथ ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, हम आपकी दावत कबूल करते हैं। थोड़ी देर आप पास बैठ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर बाद एक और साहबी को बुलाया, फरमाया जाओ खंदक वालों में ऐलान करो, आज तुम सबका खाना हजरत जाबर के घर है रज़ी अल्लाह ताला। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला सुन के ना परेशान हो गए, मैंने तो 4-5 बंदों का है और ये सबको दावत होगी। वो सब लोग कितने थे? वो 1500 आदमी था। खैर आप चुप करके घर चले गए, जाके बीवी को बताया कि सरकार ने हमारी दावत कबूल फरमा ली। वो बड़ी खुश हुई, फरमाया साथ ये मामला हुआ है। वो कहते हैं कि आपने बताया नहीं था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खाना है? वो कहते हैं ये तो मैंने बताया है। उन औरतों को भी कितने मजबूत ईमान और कीदत। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा फिर हमारे पास जो हम करेंगे आगे, फिर अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने, आप परेशान ना हो। फिर आका अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ लाए, सरकार ने अपना लोबे दहन उस आटे में भी और हानिया में भी डाला। फरमाया कि अब खाना बनाना शुरू करो और 10-10 बंदे आते जाएं, खाना खाते जाएं। ये राइट में पुराना तुर्की स्टेशन है, यहाँ से ना ट्रेन चला करती थी। ये वो जगह है, ट्रेन में अंदर खड़ी। और फरमाया कि 10-10 बंदे आते जाएं, सब लोगों ने पेट भर के खाना खाया, खाना उसी का उसी तरह बाकी था। ये हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा इस ग़ज़वा-ए खंदक के मौका पर हुआ था। ये तकरीबन 40 दिन तक मुसलमानों का और कुफार का आपस में आमनो सामना रहा और 10,000 का लश्कर लेकर मुशरिकीन मक्का और खैबर के यहूदियों ने ये मिल के हमला किया था कि हम अब मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। वो जो एक कबीला बनी करीजा था वो मदीना में रहता था, बनु नज़ीर पहले यहाँ से निकल गया था, उसको जलावतन कर दिया गया, वो खैबर में चला गया। और बाकी जो था बनी करीजा वो यहाँ था, उसका मुआहदा था सरकार के साथ कि हम मदीना के दिफा के लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो सरकार ने फरमाया कि ठीक है, उनको सारी सहूलियात है मुहैया की हुई थी मुसलमानों की तरफ से। तो इस मौका पर उस कबीले ने भी गद्दारी कर दी थी, वो यहूदियों के साथ है। ग़ज़वा खंदक के मौके पे, ग़ज़वा खंदक के मौका कुफार का बहुत बड़ा लश्कर आ गया था ना, 10,000 बहुत बड़ी फौज थी, मुसलमानों के पास 3,000 थे। ठीक है, तो कहा तुम अंदर से हमला करो, हम बाहर से करते हैं, यानी कि मुसलमानों को अब नहीं छोड़ेंगे हम। तो इस साल जो खैबर की सारी खजूरें तुम्हें देंगे। वो इस बात में उनके साथ मिल गए। लेकिन फिर अल्लाह की हिकमत थी कि अल्लाह की तरफ से इस गजवे को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, सूरह अहज़ाब में इसका जिक्र है। तो फिर रब की तरफ से अज़ाब आया कि बहुत ज्यादा बारिश, आंधी, सर्दी आ गई, जिसकी वजह से कुफार यहाँ से भाग गए थे। और ये बगैर जंग के ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई थी। ये जो 7 मसाजिद हैं, इसको ग़ज़वा खंदक इसलिए कहते हैं, खंदक खोदी गई थी। ग़ज़वा अहज़ाब इसलिए कहते हैं कि रब की तरफ से अज़ाब नाज़िल हो। और ये छोटी छोटी जो मस्जिदें बनी है ना, 7 मसाजिद इसको कहते हैं। इन जगहों पर दौरान जंग बताया जाता है कि इन सहाबा के खेमे थे, इनके मोर्चे थे। ये लेफ्ट में देखे छोटा सा ये कमरा नजर आ रहा है, ये मस्जिद फतह है। ये नीचे जो है नुक्कर में, ऊपर से वो सफेद ऐसे, ये मस्जिद सुलेमान फारसी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये राइट में जो है ये मस्जिद उमर बिन खत्ताब है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जो थोड़ा ऊपर है वो मस्जिद अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जो बड़ी मस्जिद है इसका नाम जामिया अल खंदक है। वो इस नुक्कर में वो दरख्त के साथ छोटी छोटी दीवार नजर आ रही है, वो जहाँ बंदे बैठ के काम में लगे हुए हैं, वो मस्जिद फातिमा है सलामुल्लाह अलैहा। यहाँ ये रोड है, यहाँ बताया जाता है कि यहाँ खंदक थी, उस तरफ मुसलमान थे, इस तरफ काफिर थे। ये काम करना बड़ा मुश्किल था ना, अरबों में ये पहली दफा देखा था ना कि खंदक खंदक जैसे वो नहर होती है इस तरह खड्डा खोदा गया ताकि यहाँ से कोई क्रॉस करके आगे न जाए। ये थी सलमान फारसी, वो मस्जिद फतह है, ये जामिया अल खंदक है। यहाँ भी 2 मस्जिदें थी छोटी छोटी ना, तो उनको शेयर करके ये एक बड़ी मस्जिद बना दी है। ये जो है जी जामिया अल खंदक, ये जो है ये मस्जिद उमर बिन खत्ताब है रज़ी अल्लाह ताला।
कौन सी ये वाली ना? ये वाली। वो लेफ्ट में जो कमरा है वो ऊपर वाला दरख्त के पीछे जी। वो है मस्जिद अली के नाम से, वो वाला। और वो जो नुक्कर में दीवार नजर आ रही है वो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, वो वाली जगह। जी। ठीक है जी। ये मैदान था, यहाँ पर खंदक थी इस रोड की जगह पे ना। अब आसार उसके बाकी रखने चाहिए थे, बस उनका अपना माइंड है। जी। हाँ जी। ये आसार कलीमा में रखने चाहिए, मुसलमानों की तारीफ थी। तो ये था हमारा मदीना का सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।